Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Allah Ta'ala blesses you all. Today my topic is about human behavior and the to continue with the human behavior topic human behavior. I have quoted an theory of Abraham Maslow, his hierarchical stages of human behavior. As all of we know that he has given 5 stages of hierarchy, and I have already discussed with you 3 stages. Now I'm going to discuss with you today 4th and the 5th stage of his hierarchy. As we know that he has given he was a psychologist and he has given this theory of hierarchy, and I have already discussed with you that our actions are motivated so that we can achieve certain needs. जो ये सारी needs हैं जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारी needs arise होती हैं, जो मैंने पहले भी बताया आपको, पहली need जो उन्होंने दी थी, पहला hierarchy stage जो उन्होंने दिया था, that was physiological stage. उस physiological stage में क्या आता था? फूड आता था, वाटर, स्लीप, और जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो ब्रीदिंग से लेकर, इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग टू एक्सक्रीशन, it includes desire for food, water, sleep, which I have already discussed with you in the previous lecture. That this was the first stage, that was known as physiological stage. Another stage was that which is known as the safety stage. जब हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया पहले लेक्चर्स में भी, जब हमारा पहले ये जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, ये सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब जाके हमारी जो ऐसी पैरामिड एक है, ये हायरार्किकल पैरामिड ऑफ लाइफ, इसमें जब बेसिक नीड सेटिस्फाई होती है तब जाके वी कैन स्टेप ऑन टू द अनदर नीड एंड देन वी कैन स्टेप ऑन द, हम इसको एग्जांपल लेंगे एक सीढ़ी की तरह. जब हम सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप, obviously we step on the first step of the ladder, that means हम पहले स्टेप पे कदम रखते हैं, ना कि हम पहले सीधे 5th स्टेप पे चढ़ जाते हैं. तो दैट मीन्स पहला स्टेप जो है वो हमारा, जो हमारी नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, वो सेटिस्फाई जब हो जाएंगी तब जाके हम सेफ्टी स्टेज के बारे में सोच सकते हैं. एंड if we are not capable of fulfilling our first stage of hierarchy, or we can say physiological stage, we have to motivate ourselves, we have to surely motivate ourselves to satisfy them all. And now जब ये फर्स्ट स्टेज होता है, देन ओनली वी कैन गो अप टू द सेकेंड स्टेज ऑफ द हायरार्किकल स्टेज, एंड देन वी कैन गो अप टू द थर्ड स्टेज ऑफ हायरार्की विच इज़ नोन एज लव एंड बिलोंगिंग स्टेज. जो मैस्लोव ने दिया, ही एक्चुअली गिव अ पैरामिड ऑफ हायरार्की. उसने एक पैरामिड ऑफ हायरार्की बनाया, विच हैव ऑलरेडी आई हैव जस्ट शोन द डायग्राम इन द प्रीवियस दिस लेक्चर. I have shown the diagram, you go through that. इसने एक पैरामिड दिया ऑफ हायरार्की, बेसिक से लेकर 5th स्टेज तक. ही सेज दैट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब हम एक मकान बनाते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिल्ड प्लिंथ ऑफ दैट हाउस. तो दैट मीन्स पहला चीज़ कि हम पहले फाइनल फ्लोर तो नहीं बनाते हैं, हम पहले उसका प्लिंथ बनाते हैं. ऐसे ही लाइफ है, पहले हमारी बेसिक नीड्स जब फुलफ़िल हो जाती हैं तब जाके हम दूसरे स्टेज पे या तीसरे स्टेज पे या चौथे स्टेज पे या 5th स्टेज पे हम जाते हैं. जब हमारा पहला स्टेज नहीं फुलफ़िल होता है, वी हैव टू गेट मोटिवेटेड टू फुलफ़िल आवर डिज़ायर्स. If we are not capable of fulfilling the first stage of our hierarchy, then we have to get motivated to go to satisfy those needs. Now coming to the 4th stage of hierarchy, वो है सेल्फ एस्टीम stage. Once a person feel कि they belong, the needs to be important can arise. Esteem needs जो है वो arise होती हैं जब उनका love, belonging needs fulfill हो जाता है, वो satisfy हो जाते हैं by that the needs are fulfilled. Then they go on to the 4th stage of hierarchy, जिसको बोलते हैं esteem needs. और जो esteem needs है means esteem means respect.
when once person feels that उसने जो 3 stages हैं he is satisfied with the and he thinks that he have clearly crossed those stages, तो उसके बाद वो आता है esteem needs पे. Esteem needs can be classified as external or internal. Internal esteem needs are related to self esteem. जैसे we can say that self respect or respect yourself or and achieve something. जब हम लाइफ में कुछ अचीव करते हैं then we think about, जब मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में समझाया था इन सोशोलॉजी, तो मैंने वहाँ पे एक थ्योरी आपको बताई थी कि जो स्टेजेस ऑफ लाइफ, आई गेस एरिक्सन्स थ्योरी, स्टेजेस ऑफ लाइफ, मैंने आपको उसमें पढ़ाया था कि जब ओल्ड स्टेज में इंसान आ जाता है देन ही गो थ्रू हिज पास्ट. वो सोचता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है. इफ़ उसने अच्छा किया होगा देन ही इज़ सेटिस्फाइड. इफ़ उसका कोई भी लाइफ का टाइम, कोई भी लाइफ का पार्ट जो है ख़राब निकला हो तो ही रिग्रेट्स ऑन दैट. तो दैट मीन्स वो उसका एक ओल्ड स्टेज आ जाता है उस टाइम पे. लेकिन यहाँ पे यही बोलता है मैस्लो कि 4th स्टेज ऑफ हायरार्की में यही बोलता है जब उसके पहले 3 नीड सेटिस्फाई हो जाते हैं देन ही गो ऑन टू द स्टेप ऑन टू द नीड ऑफ सेल्फ एस्टीम, इन वेयर वो अपने आप को ही फील्स दैट ही हैज़ देयर इज़ अ नीड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड एवरीबडी नीड्स अ सेल्फ रेस्पेक्ट. जब आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे नोबडी इज़ गोइंग टू रेस्पेक्ट यू टिल यू विल नॉट रेस्पेक्ट योर सेल्फ. So self-esteem such as needs to respect yourself and achieve those whatever you have achieved. The individual try to think about those achievements and thinks that the need arises to be self-respected. External esteem needs are those such as social status, reputation and recognition. These are some of the external esteem needs, and internal esteem needs are to respect ourselves, self-respect जिसको हम बोलते हैं. So 5th stage of hierarchy जो है that is self-actualization. It is the most important stage of hierarchy. जो इंसान इस स्टेज पे आ जाता है और उसके 4th स्टेजेस ईजिली कवर अप हो जाते हैं, ईजिली सेटिस्फाई है वो 4th स्टेज, देन ही हैज़ लिव्ड हिज लाइफ हैप्पीली एंड इन अ सेटिस्फाइड मैनर. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द समिट ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. इट कैन बी डिफाइंड एज द क्वेस्ट ऑफ रीचिंग योर फुल पोटेंशियल. जो मैंने आपको बताया ना कि इंडिविजुअल जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच जाता है दैट मीन्स ही हैज़ लिव्ड हिज लाइफ एंड ही इज सेटिस्फाइड विद वट एवर ही हैज़ अचीव्ड, वट एवर ही इज़ हैविंग. अनलाइक सम ऑफ द लोअर नीड्स दिस नीड इज़ नेवर फुली सेटिस्फाइड. लेकिन जैसे जैसे हमारा बाकी नीड 4 नीड्स जो हैं, 4 स्टेजेस जो हैं उसमें वो हमारी नीड्स जो हैं वो हम ऐसे तैसे करके मोटिवेटेड होके सेटिस्फाई करते हैं खुद को. बट दिस स्टेज जो जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, ये स्टेज में हम वी आर नॉट फुली सेटिस्फाइड. हम जितना भी इसमें कुछ भी हासिल करने की इस स्टेज पे कोशिश करें फिर भी हमारी जो वो क्यूरियोसिटी है दैट इज़ गोइंग टू गेट एक्सटेंडेड डे बाय डे. So due to the fact that people can grow and change and continue to challenge themselves, people in this stage जो भी इस स्टेज में आते हैं tend to have needs. उनको needs राइज होती हैं जैसे मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये सारी नीड्स जो एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, truth, justice, wisdom, meaning, these are some of the things, these are not only mere words, these are the words जिस पे these are the things. morality एक ऐसी चीज़ है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक ऐसा इंसान तब तक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता. जब वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ईजिली, उसने सब कुछ अचीव किया हो लाइफ में, तब जाके वो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन जो इस स्टेज तक पहुंचता है और फिर ये सब चीज़ें एक्सेप्ट फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना. मतलब ये इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द थिंग्स इन द डीपर सेंस. सो दीज वर द स्टेजेस ऑफ हायरार्की which Maslow gave and described the human behavior through his theory. He described the human behavior through these 5 stages of hierarchy. I hope you understand it. It was all for today. Thank you so much.